This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And today is our second lecture of stage 2. And I told you, if you remember, that yesterday when we were studying, that I'm going to skip this part, and we will study this part the next day, and the day has finally come. You must have Yes, sir. remembered, मैंने एक डेफिनेशन को स्किप किया था और मैंने आपसे कहा था कि आज हम इस डेफिनेशन को तफसील से पढ़ेंगे, याद होगा आपको. और Yes, दैट्स sir. अबाउट फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स. जिंदगी में हम कुछ काम करते हैं, लेकिन कितना करते हैं ये बात हमें जाननी है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर को देखें, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे काम है जो आप हमेशा करते हैं, जैसे झूठ बोलते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं, ठीक है ना. यू ऑलवेज लाई, यू ऑलवेज हर्ट, यू ऑलवेज डिसीव पीपल, ठीक है. कुछ काम ऐसे जो आप लोग रोज करते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो आप कभी कभी करते हैं, कुछ काम ऐसे जो आप कभी नहीं करते. तो अब आप जल्दी से मुझे बताइए वो कौन से काम है जो आप लोग हमेशा करते हैं. सर, आई ऑलवेज. Sir, I always pray namaz walk 5 times. I always offer namaz. Pray namaz नहीं करो. I Offer. always offer namaz. I Offer always namaz. offer prayer. Offer prayer होता है और offer namaz होता है, offer salah होता है. Okay, sir. Yes. I always wake up in the Wake up. morning. Wake I up in the always morning. wake up. Sir, I always do breakfast in the morning. Very good. I always do breakfast in the morning. Very good. I always take tea. I Take tea in the always morning. I always take tea. Very good. I always do workout at the evening. Yes, that's very good. Very good. I usually speak truth in my life. I usually speak truth in my life. Routine life, I- you can say. Yes, yes, And- yes. I rarely speak lie. I hate that. To speak Yes. lie. I usually went to the shopping. I usually go. Would you go? Okay, sir. Say. I I usually go for a shopping. usually go for shopping. That's very good. Sir, I always try don't lie. I always Try. I always don't try to lie. दोबारा. Sir, like I'm wanting to say like मैं कोशिश करती हूँ हर दफा कि मैं झूठ ना बोलूं. I always try not to lie. Okay. I always try not to lie. Okay, sir. I always try not to say something which hurt others. Okay. Sir, I usually cook food. I usually cook food. Yes, that's very good. That's very good. I usually cook. I often cook food. I often cook food. That's very good. That's very good. I sometimes often go to my Chinese friends. restaurant. Very good. Next. So I seldom read books. I seldom read book. For Sarah, I don't like novels and these kinds of books. And
यस, कोई ऐसा काम जो आप लोग कभी नहीं करते? आई नेवर, आई नेवर, I never. आई नेवर, I never I tell a lie. never sleep early. आई नेवर स्लीप अर्ली. यस, you are right. Sir, I always never- sleep early. I always sleep early. Yes, Oh. that's very good. I never. Never- Yes, yes. You carry on. I never do this again. I never do this again. That's very good. That's very good. अच्छा, अब देखो बेटा, ये तो गोरे के लिखे हुए ना. अब जरा इसकी मैंने उर्दू लिखवा दी थी कल. No, Like, sir. अच्छा, अब देखो ये जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए ना, दे आर पॉजिटिव एडवर्ब्स, एंड राइट साइड पे जो लिखे हुए दे आर नेगेटिव एडवर्ब्स. अगर कोई अपनी जबान पर ये लेकर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट के बारे में बात करूं और मैं आपसे ये कहूं, ही ऑलवेज गेट्स पोजीशन, तो अब आपको क्या लगेगा, ये एक अच्छा स्टूडेंट है या बुरा स्टूडेंट है? अच्छा स्टूडेंट है. अच्छा, अगर student. यही जुमला इसी जुमले में मैं ऑलवेज की जगह लगा दूं, ही हार्डली एवर गेट्स पोजीशन, Sir, every student है. Every he hardly ever gets position. अगर मैं ये कह दूं he hardly ever gets position, तो ये अब बुरा स्टूडेंट हो गया. He always comes on time, he almost never comes on time. ठीक है? Yes, sir. ये फायदा होता है एडवर्ब्स को सीखने का. और ये एडवर्ब्स जो है मैं उर्दू लिखवा रहा हूं, लिख ले. ऑलवेज मींस हमेशा, ऑलमोस्ट ऑलवेज तकरीबन हमेशा. सरसीब ऑलमोस्ट ऑलवेज comes with the wonderful ideas. Almost always. Sir, कर Not दे सर, always. क्या बताएं? Almost always तकरीबन हमेशा. Frequently ज्यादातर. He frequently comes late. वो ज्यादातर देर से आता है. He frequently comes late. He frequently comes late. Normally, usually, generally, आमतौर पर. He normally आमतौर पर 70% है. Often भी पढ़ा जाता है, often भी पढ़ा जाता है, अक्सर व बेशतर. वो अक्सर व बेशतर देर से आती है. She often comes late. She sometimes comes late. अच्छा, sometimes s लगेगा. Sometimes comes late. She sometimes comes late. Sarasip sometimes gets angry. कभी कभार. Huh? Sometimes कभी कभार. Sometimes बाज़ औक़ात. Sir, next. Seldom कभी कभार. अब ये नेगेटिव शुरू होगा. She seldom comes late. She seldom comes late. Hardly ever. He hardly ever मतलब बमुश्किल. He hardly ever replies. सर क्या मुश्किल? क्या बोला बमुश्किल. आपने? क्या मुश्किल? बमुश्किल. बमुश्किल. He hardly ever replies. He hardly ever replies. Sir, rarely. Rarely बहुत ही कम. बहुत ही कम. Occasionally मौकातन.
I occasionally smoke. I occasionally smoke. कभी दोस्त यार कहीं मिल के बैठे. I occasionally smoke. सर उर्दू क्या बताइए? मौका? मौका तब, किसी मौके पर. उर्दू लिखी किसी मौके पर. अच्छा। किसी मौके पर. ऑलमोस्ट हार्डली एवर ना होने के बराबर. सरसीब हार्डली एवर गेट्स एग्री. ना होने के बराबर. सर ये हम सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं है, हर टेंस के लिए है ना? ये हर जगह इस्तेमाल हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स. जी सर। अच्छा, ये तो और- आप जनरल बता रहे हैं ना हमें? ऑलमोस्ट अभी तो ये आप प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करेंगे. ऑलमोस्ट नेवर, तकरीबन कभी नहीं. She almost never speaks in English. She almost never speaks in English. She almost never speaks in English. Never कभी नहीं. ये अल्फाज अब जुमले में कहां पर इस्तेमाल होंगे, आइए देखते हैं. इनकी ये जितने भी एडवर्ब्स अब आप लोगों ने पढ़े, इनकी लोकेशन का क्या होगी, ये इस्तेमाल कहां पर हो रहे होंगे. देखिए, सब्जेक्ट के फौरन बाद, वर्ब से पहले. I sometimes watch Chinese films. कभी कभार मैं चाइनीज फिल्म्स देखता हूँ. Sometimes, not all the time. Sometimes. Sometimes I watch Chinese films. ठीक है, यस सर। आगे चलिए. She never eats vegetables. She never eats vegetables. I always read comic books. They rarely watch music channels. देख, अच्छा एक बात, एक दफा सवाल किया था किसी ने कि क्या कभी एडवर्ब वर्ब के बाद आ सकता है, वर्ब के फौरन बाद. तो सोच में डाल दिया था इस बात ने कि आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है, नहीं आ सकता. सर आ सर सकता आ है। सकता है आ सर आ सकता सकता है, है. आपने 2-3 सिचुएशंस बताई थी। बिकॉज वो डिस्क्राइब कर रहा होता है वर्ब को. आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन याद रखिए वर्ब के फौरन बाद सिर्फ और सिर्फ ये जब आएगा जब आपका जो वर्ब हो इज एम आर और वॉज वर्ब, यानी कि स्टेट वर्ब. Yes sir. I'm always worried about my students. She is usually very happy. They are often at home on Sunday. Is he usually in office at 9 a.m.? क्या वो आम तौर से ऑफिस में होती है? Is he usually या is होता है? Is he usually in office at 9 a.m.? No, I don't think so. You better ask. Okay, I will ask, then I will let you know. बात समझ आ रही है बेटा आपको? जी सर. अब Yes sir. पहली लोकेशन सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले. अब अगर सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स आ जाए, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाए और मेन वर्ब भी आ जाए, तो याद रखिएगा कि आप उसके दरमियान में क्या इस्तेमाल करेंगे? एडवर्ब। उसके दरमियान में आप एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं. सारा डज नॉट ऑलवेज कम लेट. सारा हमेशा लेट से नहीं आती. आगे बढ़े. Ali Ali doesn't does usually smoke. not smoke. I will always be there for you. Thank you very much. I will always be there for you. Thank you very much. आपने इतना कहा मेरे लिए काफी है. अली डज नॉट यूजुअली स्मोक. अली आमतौर से सिगरेट नहीं पीता. अब आप देख लें, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब आ जाए और आपको
एडवर्ब लगाना है तो आप इसको कहाँ पर इस्तेमाल करें। ठीक है बेटा, चले यार। Yes, sir. अच्छा, अब आपके पास देखिए वो पुरानी बात है जो मैंने आपको बिल्कुल फाउंडेशन लेवल में पढ़ाई थी। मैंने आपसे कहा था कि आप एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के आखिर में भी लगा सकते हैं। समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, देखें शुरू में आ गया, अगर ये शुरू में आ गया Yes, तो sir. कॉमा लगाएंगे, और ये आखिर में भी जा सकता है। हो Yes, गई sir. पुरानी बात है। Yes, sir. ठीक है बेटा, चल अब आ जाए आप लोगों का फ्राइडे की जो प्रेजेंटेशन आपको देनी है मिस महक के साथ या मिस हिना के साथ या मिस बुशरा के साथ, जहाँ के भी आप लोग, आपकी कौन लेते हैं क्लास? मिस महक लेती है ना, मिस महक। Navina, और yes, sir. हफ्ते को मैंने एक जो ना वो रखा है, मतलब मैं टाइम सेट कर रहा हूँ। अगर टाइम सेट हो गया, मेरी कोई मसरूफियत दी हुई, तो मैं दोपहर में या शाम में, तो मुश्किल लग रहा है मुझे, दोपहर के अंदर 1 घंटे का सेशन रखूंगा जिसपे मैं डेली रूटीन सुनूंगा सबके। आपके पास 3 मिनट होंगे, 3 मिनट के अंदर आपको अपना डेली रूटीन डिस्क्राइब करना होगा। और तकरीबन Okay, sir. 17 लोग आप होंगे अगर सब लोग आ गए। और एक और मेरा जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है वो भी, उनकी भी प्रेजेंटेशन है, उसमें 50-60 बच्चे। और प्रोफेशनल इंग्लिश का जो एक नए बच्चे आए 50-60, वो ऑडियंस बना देंगे। और जो प्रीवियस चल रहे हैं अगर वो बच्चे भी आ जाए तो 100 से ऊपर बच्चे हो जाएंगे। हमारे पास 100 की जगह Sir, होगी। it's really hard for us. For me only, sir. It's really क्या? hard. अच्छा है ना, 100 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देगी। ओहो, Sir, afternoon Yes, में sir. रखिएगा सर, इवनिंग में नहीं। ठीक है ना। Yes, sir. Evening time, please. वरना Like फिर नहीं, 6 and इवनिंग नहीं 7. सर, सैटरडे मोस्टली सर फैमिली डे होता है, तो सर बड़ा जब भी सर आफ्टरनून सही है। देखते हैं कौन सा टाइम सेट करते हैं। मेरा अपना भी शेड्यूल्स होते हैं ना, मेरी अपनी भी क्लासेस होती है। सर इवनिंग Okay, sir. रखिएगा, Okay, sir. ठीक है, तो फिर हम अभी लोग फाइनल फ्री नहीं हो किया मैंने, सकते टाइम हैं। टाइम फाइनल नहीं किया मैंने, बता दूंगा। लेकिन अब जरा ये वोकैबुलरी देख ले, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन Yes, बनानी है। कल आप लोगों ने शायद अपनी क्लास के अंदर भी कुछ प्रेजेंटेशन टाइप दे रहे थे आप लोग, मेरे ख्याल से बस महक के साथ। वहां पे भी आपको एक Yes, sir. वोकैबुलरी शीट आपके पास थी, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा लाजमी तौर पे। अब ये जो आपके पास ये तो नोट्स आपके पास ही रहे, उसमें भी ये वोकैबुलरी लिखी हुई है। इस वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें, बहुत नेक इंसान बनाइएगा उसको। नमाजें पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, गीता पढ़ाएं, बाइबल पढ़ाएं, जो भी आपका मजहब है उसको पढ़ाएं। और बहुत नेक इंसान बनाए। सुबह अलार्म से उठाए या बेगम खुद बेगम उठा रही है या हस्बैंड उठा रहे हैं, शावर दिलाए, वजू करवाए, नमाज पढ़ाए। देखिए, काउंट द बीट्स, तस्बीह पढ़ना, रिसाइट द होली कुरान, ड्रेस अप, डॉल अप। अगर आप डॉल, अभी तक आप डॉल ही है तो ये वोकैबुलरी आपके लिए। डॉल अप, डॉल अप का मतलब होता है, Sir. डॉल अप का मतलब होता है बनाव श्रृंगार करना। Okay. ठीक है ना। डॉल अप का मतलब, दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स, दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स। ये Sir, लड़के इसका मतलब कि हम दे सर इसका बना, मतलब कि हमें जनती बंदा बनाना है। नहीं, डॉल अप का मतलब होता है बनाव श्रृंगार करना। 16 सिंगार सर, 16 श्रृंगार, तैयार होना, Yes, sir. ब्यूटी पाउडर लगाना, तैयार होना, मेकअप करना, मेकअप मेक करना। सर ये ओवर। इतना अच्छा सर ये इतना अच्छा कौन है जो अलार्म के साथ ही उठ जाता है, इतना कुछ भी कर लेता है। कौन? सर मैं मजाक कर रही हूँ। डॉल अप, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। अब आप हो सकता है नाश्ता करती हो या बनाती हो, दोनों में से कोई एक काम आप जरूर करती होगी, लेकिन मेरे Okay, ख्याल से sir. बहुत ज्यादा दोनों ही काम करती होगी। फर्स्ट यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, देन यू Yes, सर्व sir. ब्रेकफास्ट, देन आफ्टर दैट यू टेक ब्रेकफास्ट। ऐसा ही है? और सर अगर हम किसी से Yes, sir. करवाते होंगे तो आई गॉट आगे चलिए। डू होम सर चोर्स। इंटरनेट क्या होगा? सर्फ द हाँ, इंटरनेट, सर्फ आई द सर्व द इंटरनेट। इंटरनेट, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करना। आई सर्व द इंटरनेट, मैं इंटरनेट इस्तेमाल करती हूँ। आई सर्व द इंटरनेट। और उसके बाद देखिए, आई आयरन क्लॉथ्स, आई डू होम चोर्स, पूरा बासी बना दिया मैंने। आई डू डिश वॉशिंग, आई क्लीन द फ्लोर, आई मॉप द फ्लोर, आई वॉच टीवी, आई सर्व द इंटरनेट। फिर लैंग्वेज क्लास के बारे में आप जरूर बताइए। आई अटेंड लैंग्वेज क्लासेस, कब लेती है, कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, क्या होता है, सारी चीज आपको डिस्कस करनी है। ठीक है ना। Yes, sir. ये वोकैबुलरी लाजमी आपके पास आपकी प्रेजेंटेशन में नजर आनी चाहिए। आई गेट फ्री,
I get busy, I get tired, I get stuck in my works, I get stuck in my home chores. That's why I miss my class. I go shopping, I go jogging, I go outing, I go for strolling. I have chit chat. Strolling का मतलब चहलकदमी करना. I go for strolling. I have chit chat with my family. बातचीत करना. Take nap. दोपहर में खाने के बाद मुख्तसर नींद को कहते हैं take nap. कैलुला करना, थोड़ी देर के लिए सोना. I take nap. अच्छा, अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उससे आपकी जो स्पीकिंग होती है ना वो बहुत बेकार हो जाती है. सर वो कौन से वर्ड्स होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं ये, देखिए. देन अक्सर बच्चे जब डेली रूटीन के ऊपर प्रेजेंटेशन देना शुरू करते, देन 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 मुझे 2 दफा से ज्यादा नहीं चाहिए. देन ठीक है भाई. आफ्टर दैट 2 दफा. उसके बाद सो दैट का मतलब लिख लो अपने पास, ताकि. I attend language classes every day so that I can improve my skills. ठीक है. I take language classes every day so that I can improve my skills. Sir, what does it mean? So that, ताकि. After plus verb ing. After plus verb ing का मतलब होता है कुछ करने के बाद. After taking your class, I will take my another class. After taking both classes, I will take another class. After taking all classes, I will read my WhatsApp. After reading WhatsApp, I will read more WhatsApp on my tablet. After reading those WhatsApp, I will read more WhatsApp on iPhone. And after reading, but before reading all these WhatsApp, I will offer namaz isha. And after Sir, offer, मेरा yeah. क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा है आफ्टर के बाद वर्ब आईएनजी लगा देनी है, लेकिन हम तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना. तो क्या हो गया? यहाँ पर वर्ब आईएनजी हम डाउन है. आफ्टर टेकिंग क्लास लेने के बाद मैं सो जाती हूँ. आफ्टर टेकिंग क्लास आई स्लीप. ओके. सर प्रेजेंट सिंपल में भी अबे ये तो तो आफ्टर प्रोग्रेसिव के की बात नहीं बाद हो वर्ब आईएनजी लगा रहा हूँ, बिफोर के बाद वर्ब आईएनजी लगा रहा हूँ. जरा जहन पे जोर डालो बहन. मैंने तुमसे कहा था, आपसे कहा था, बताया था कि जो वर्ब आईएनजी होती है अक्सर वो नाउन के एतबार से इस्तेमाल की जाती है. जेरिड का वर्ड याद Okay, आ रहा है आपको? जेरिड. आई लाइक yes sir, ड्राइविंग. yes sir, वो now sir I got ड्राइविंग you. ये क्या है? आफ्टर Yes, sir. Yes sir, now yes टेकिंग क्या sir, है? yes sir, I got you. Like swimming, like this. यहाँ पर प्रोग्रेसिव sir. सेंस थोड़ी नहीं देगा आपको. यहाँ पर ये Yes, आपको sir. सिंपल वही सेंस दे रहा है. क्लास लेने Yes, के sir. बाद, क्लास लेने से पहले, क्लास लेने के लिए मैं कमरे में अपने आप को लॉक कर लेती हूँ. आई लॉक माई सेल्फ फॉर टेकिंग क्लास because of disturbance a lot at my home. But people see me with Okay. suspicious eyes. लेकिन लोग मुझे शक की निगाहों से देखते हैं. Where are you going with your cell phone? And what do you keep on doing at 7 o'clock with your cell phone? And you keep talking. Sometimes you keep laughing. Who do you talk to? किससे बातें करती हो? Who do you keep talking? किससे बातें करती रहती हो? बता दो कोई है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ है. SKH. तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा तो तुम भी आपने हंसोगे. सर क्या स्टोरी बनाई है आपने? आप ड्रामे लिखना शुरू कर दें. मैं जिस दिन ड्रामे लिखना शुरू करूंगा आप लोग पढ़ना छोड़ देंगे. ऐसे ड्रामे लिखूंगा मैं. मोहब्बत कभी सर मिलेगी कसम नहीं. से. ओह माय गॉड. मोहब्बत मिलेगी नहीं. ठीक है ना. समंदर में डूब जाएगी, आखिर में Sir, मर उसको हो जाएगी. जाएगी. चले. 12 हाउ टू प्लान योर प्रेजेंटेशन. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. फिर मेरा दूसरा आज का असल लेक्चर अभी मैंने शुरू किया ही नहीं है. हाउ टू प्लान योर प्रेजेंटेशन. आपको अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे प्लान करना है वो जरा सुन लें आप लोग. सबसे पहले आप अपना खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो आपके टीचर्स आपको सिखा चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. इंट्रोडक्शन होगा 20 to 25 सेकेंड्स का. किस तरह से? दिस इज सरसीबुर रहमान. आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. I am a freelancer. I am 36 years old and I have been working online for 2 years.
But I've been teaching for 18 years, and I was born on 30th of January. This is my birthday a month, and so many wishes are on the way. And some people are planning different surprises for someone special. And I love to teach. Teaching is my passion, not my profession. And I love to serve my nation. And my aim of life is to become Pakistan #1 online English language instructor. This is the aim of my Inshallah. life, right? That people, if somebody asks anyone in Parachalar, yeah, I want to learn English, they say join SKH. If somebody asks in Quetta, I want to learn English, join SKH. Oh, I want to learn English in Multan, join SKH. It was my dream few years back, but now from every city of Pakistan, people are studying, learning, making the most of their time. And I am sure if I keep working hard, if you keep learning, if you keep working like a black, if you keep working like a clapper, if you keep working your fingers to your bone, I am sure that you will improve your English. आपको अपना introduction Yes, देना sir. है, then कब बोला था सर उसने? आपने जो ये लास्ट में जो लाइन बोली है ना, मुझे इसकी समझ नहीं आई, so kindly please इसको explain कर देते हैं. Actually, I am using gobbledygooks in my conversation. You cannot fathom my confabs. It's all Greek to you. And when I use these kind of jargons in my conversation, everything bounces over the student's head. Then they say, I beg your pardon, sir. I'm sorry, sir. Come again, sir. What, sir? Sorry. Say Okay, again. sir. So then they find themselves in a gum tree. They find themselves between two fires. They find themselves in jam. They are in jeopardy because they are not getting my words, because I am using hi-fi vocabulary. I'm using gobbledygooks. This is the English which I'm not using for communication, just for showing off. ये वो vocabulary है, ये वो words है जो हम लोगों ने बचपन में याद किए थे जब हम स्टूडेंट थे, और जब कोई ज्यादा आता ना मुंह को तो उसके बाद से ये मशीन गन चलाते थे और बस वो ढेर हो जाता है, भाई माफ कर दो तुमसे जो हमने आज के बाद अंग्रेजी बोली. Don't never वो mess with समझता me. होगा पता नहीं कितनी इंग्लिश आती है. Never mess with me. Remember, risk is my business. सुन ले, risk is my business. Danger is in my game. Don't mess with me because आप अपना नाम लगा लीजिएगा बाद में, because SKH is my name. Risk is my Great. business. Risk is my business. Danger is in my game. Don't play with me. Don't mess with me. मुझसे पंगा मत लेना because कोमल is my name. ठीक है ना? चले आगे ये तो चलते. टाइम बन गई. ठीक है, ये हमने ये मैं आपको भेज दूंगा. सर ये अपने ड्रामे में आप लगा सकते हैं, डायलॉग में. जी जी. आप कह रहे हैं ना आप ड्रामा बनाने लगे हैं, तो फिर उस पे ये डायलॉग इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए, सर आप अपनी टैगलाइन बना लें. बहुत शुक्रिया. Yes, sir. मेरी तो हर लाइन टैग लाइन है बेटा. अभी हम आपसे इतने सवाल पूछेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम सर के कौन से सवाल का जवाब दें और कौन सा सवाल सुने. अब आप आगे सुनिए. Sir, please don't do this. मॉर्निंग का सर आप आपको हमें भी सिखा दें यही प्रो इंग्लिश. इंशाल्लाह. मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग सेशन आपको मॉर्निंग में क्या करती है, आफ्टरनून में क्या करती है, इवनिंग में क्या करती है, नाइट में आपका क्या रूटीन है. मतलब अगर आप अपनी रूटीन को जब लिख रहे हो तो आपके जहन में आपका टाइम होना चाहिए. ये नहीं मैं लिख दिया मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून का पैराग्राफ, इवनिंग का पैराग्राफ, नाइट का पैराग्राफ. भले से 4-6 सेंटेंसेस आ रहे हो, उसमें 2-4 सेंटेंसेस आ रहे हो, लेकिन रात में काम अलग है. जैसे सोने से पहले आपने हो सकता है आई मेक माई बेड, आई जस्ट फिल अप वाटर बॉटल्स, होते हैं ना, रात को सोने से पहले बोतलें भर दी, Yes, sir. किचन साफ कर दी, Yes, sir, साफ sir, कर we दी, getting the बर्तन धो के point. अंदर रख दिए, चप्पलों को जगह पर रख दिया, दरवाजे बंद कर दिए, कुंडियां लगा दी, पर्दे डाल दिए, चलो ये रात के काम है. वीकेंड का रूटीन क्या है वो भी आप थोड़ा सा शेयर आपको कैसे पता है? सब पता है. सब दिखता है बेटा. सो वीकेंड का रूटीन आपको बताना है. फिर वीकेंड का रूटीन क्या है, कि वीकेंड में आप क्या करते हैं, तो ये रूटीन आप लिखेंगे. अगर आपने लिख लिया ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ. और यूनिट 3 मुझे Yes, पता sir. उम्मीद है सॉल्व होना शुरू हो गया होगा अब तक.
सर हो गया ना? इंशाल्लाह। चले आगे चलते हैं। आज का असल लेक्चर तो अब शुरू हो रहा है। अभी सर तक आपको ये हमने कोई प्रेजेंटेशन रिटन फॉर्म में देनी है या आप आपको वो सेशन रिटन हमारा लिखनी करेंगे? है। लिखने के बाद अगर तो सैटरडे का सेशन मैंने लाइव रख लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना वरना आप हर बच्चा मुझे अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके सैटरडे और संडे को भेजने वाला है। बस अपना ठीक मोबाइल है नंबर सर। मत शेयर कीजिएगा, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना पासवर्ड और अपनी आईडी मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो जो नो सर। ऑडियो क्लिप आएगा वो हम आगे फॉरवर्ड भी करेंगे। ओके सर। चले प्रेजेंट सिंपल वर्सेस हैव हैज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आज का आपका असल टॉपिक ये है हैव टू हैज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। थैंक यू सर, मैं कर रही थी जी बोले। इस लेक्चर का, मैं वेट कर रही थी हैज हैव टू प्लस बीएफवी। करें वेट करें, ये अब मजीद वेट करें, अब मैं चाय पी रहा हूँ। इसमें थोड़ी वीक थी, हैज हैव Yes, टू sir. यूज। 7 बजे से रखी हुई थी मैंने चाय की। सर मुझे इसका पता है, इसको कैसे यूज करते हैं। बताइए, समझाइए। सर शी हैज टू राइट ए लेटर एंड शी राइट ए लेटर, वो लिखती है हाथ, लेकिन इसका अगर हम हैज टू जब लगा देते हैं तो मतलब कि ये आ जाता है कि आप किसी को ओपिनियन दे रहे हैं, किसी को शी हैज टू राइट ए लेटर। वो हैज टू मीन सर you are doing that thing which you are giving someone opinion and giving someone suggestion. She has to write. Sir Hasif has teach us, so has to teach us sir must देते हैं, like इधर also भी must भी यूज होता है। must वहाँ यूज होता है जहाँ हम ड्यूटी कर रहे हो, जैसे कि तुमने एयरपोर्ट में जब जाना है तो अपने साथ अपना वो एयरपोर्ट पासपोर्ट जरूर लेके जाना है। you must take your passport with you when you visit when you go airport. So has to और must to, and if you has to अगर आप पास पे यूज करोगे तो had to लगाओगे। इधर has got to भी हो सकता है, she has got to write a letter, लेकिन अगर आप पास पे यूज कर रहे हो तो आपने पास में got यूज नहीं करना, आपने सिर्फ had to यूज करना है। अगर आप फ्यूचर में यूज कर रहे हो तो she will has to write a letter। मैं कल से मिस कोमल आपकी क्लास लेगी, ठीक है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। सर हैव और हैज एज अ स्टेट ऑफ वर्ब। नहीं बेटा, ये तो अभी स्ट्रक्चर है, ये स्टेट वर्ब नहीं है। अच्छा, मैं अब अगर आप सर ठीक नहीं है। ये अब आखिर में स्टूडेंट्स बताएंगे कि आपने जो बताया वो उनको समझ आया या आपने इसे बता दिया। अब मैं समझा रहा हूँ, मैंने आपसे समझाने के लिए कहा था, Okay, बताने के लिए नहीं। चलिए अब आपको पता चलेगा समझाने और बताने में क्या फर्क है। रिपीटेड एक्शन वर्सेस रिपीटेड ऑब्लिगेशन। कोई काम जो आप बार बार करते हैं, बहुत सारे काम है, सोचना शुरू कर दे, बोलने या नहीं, बस अल्लाह का वास्ता है। रिपीटेड ऑब्लिगेशन, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आप बार बार निभानी पड़ती है। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको बार बार निभानी पड़ती है, और कोई ऐसे काम जो आप बार बार करते हैं। अच्छा, हो सकता है जो काम मैं बार बार करता हूं वो किसी की जिम्मेदारी हो, जो किसी की जिम्मेदारी हो सकता है कि वो मेरा काम। आ रही है बात समझ? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। शी राइट्स अ लेटर और आगे लिखा है शी हैज टू राइट अ लेटर, उसे खत लिखना पड़ता है, उसे खत लिखना पड़ता है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो उसको बार बार निभानी पड़ती है। अब देखिए दो बातें हैं। आप अपने घर के बाहर जो आपका लॉन है, बड़े आपकी ख्वाहिश थी कि घर के बाहर एक लॉन होता, बीच में एक छतरी लगी होती, 4 कुर्सियां लगी होती और वहां आपकी कॉलेज की दोस्तें बैठी होती और आप चाय पी रही होती और शरफू लेकर आता। शरफू शौहर नहीं आपका, आपके घर का मुलाजिम, ठीक है। अब और आप वहां बैठकर बातें कर रही होती। अब वहां बैठकर और भाई साहिबा क्या करती रहती हो पूरे दिन? व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग होल डे? मैं बस I do nothing, I just take classes. What kind of classes? I take language classes. Oh, that's great. Where?
I take online classes. अब ये जो साइबा बातें कर रही है, साइबा क्या बता रही है? साइबा अपना रूटीन बता रही है. Okay, so who teaches you? Well, there are many teachers, but Sarasip teaches us grammar, and there are many teachers. They teach us different things. And there is also a conversation hall where we can talk to ourselves anytime, 24/7. Oh, that's great. Please don't send me a link. I will also join. अब ये जो बातें चल रही थी, ये अभी साइबा अभी अपने रूटीन पर बात कर रही थी. देखो, जब रूटीन पर बात करोगे तो तुम क्या इस्तेमाल करोगे? प्रेजेंट सिंपल. लेकिन अब अलीशा चली गई नौकरी के लिए. ऑलरेडी शी इज वर्किंग समवेयर, लेकिन आज एक इंटरव्यू के लिए गई. सो वहां पर ये पहुंची. प्लीज हैव अ सीट. So where are you currently working? I'm currently working at HBL, Hyderabad campus, as an HR manager. As an HR manager. Oh, that's great. So what are your responsibilities there? अब ये जो बातें करेगी, अब ये जितनी भी बातें करेगी, अब बताइए ये सारी बातें किसमें होंगी? Present. I have to. अब ये कहेगी I have to, I have to, I have to, I have to, I have to. अब ये वहां बैठकर क्या बता रही है? अब ये वहां बैठकर अपनी जिम्मेदारियां बता रही है. ये बात समझ. अब ये वहां बैठकर अपनी जिम्मेदारियां बता रही है. मुझे ये करना पड़ता है, 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 मुझे ये करना पड़ता है. ये सारी अब अपनी जिम्मेदारियां बता रही है. मुझे ये करना पड़ता है. लगता है कि मुझे करना पड़ता है, यानी उसकी खुशी नहीं है, उसकी ड्यूटी नहीं, लेकिन उसे जिम्मेदारी ना है. मुझे आपकी क्लास लेनी पड़ती है. खुशी की बात कहाँ से आ गई? जिम्मेदारी में इंसान की खुशी नहीं होती. जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है. अब आप ये कह रही है मुझे घर वालों के लिए खाना बनाना पड़ता है. क्या उसमें आप मुंह बनाकर खाना बनाती है? मैंने तो नहीं बनाना है, लेकिन चलो बना देती हूँ. बनाना मैंने तो बनाना, और कौन बनाएगा? तो भाई जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है. इसमें खुशी और गम की कोई आंसर नहीं पाया जाता. जिम्मेदारी है, कोई काम करना पड़ता है. मजबूरी नहीं है, जिम्मेदारी है. जिम्मेदारी बात को समझना है. जिम्मेदारी, इट्स नॉट योर कंपल्शन, इट्स योर ऑब्लिगेशन. मुझे अपने वालिदैन का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना पड़ता है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, आई हैव टू लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, आई हैव टू फुलफिल देयर ऑल डिजायर्स. ये मेरी जिम्मेदारी है. अब मैं जो कहूँ नाखुश हो के, नहीं भाई, जिम्मेदारी है. चले अब बताइए आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां एक एक करके. सर आई हैव टू. Sir, at wife, I have to look after my. I have to serve my in-law. Okay, next. Sir, I have to do my all home chores. I have to do my all home chores. Very good. Or Sir, I have to cook food daily. I have to cook food daily. That's very good. I have to look after my unit. I have to look after my unit. Okay. I have to look after. Very good. I have exam. Iron the clothes. ठीक है. I have to, और कोई? I have to. Iron the clothes. I have to iron the cloth. I have to. I have to send WhatsApp to my students every day. I have to manage all the things all alone these days. Sir, I have to teach my kids. I have to teach my kids. I have to teach my kids. Kids. Very good. I have to do my outdoor works also. That's very good. That's very good. I have to. अच्छा, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको नहीं निभानी पड़ती? I don't have to. I don't have to drive a car.
Okay. And I don't have to take care my lawn. Okay. I have to go to university by bus. That's very good. I don't have to. I don't have to use public transport. I don't have to use public transport. That's very good. I don't have to. कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको नहीं निभानी पड़ती. I don't have to. I don't have to go for a job. I don't have to go for a job. That's very good. Sir, ये सही होगा. I don't have to answer someone. I don't have to answer anyone. Anyone, okay. I don't have to answer To anyone. answer anyone. That's very good. I don't have to answer anyone. And I don't have to. I don't want to do this. Huh? No, I don't have to. I don't have to. I don't I have don't to. have to do this. I don't have to watch my the crockery. I don't have to wash. I don't have to do dishwashing. Yes. I I don't have to. I don't have to do dishwashing. That's very good. That's cool. Okay. अब आप सवाल करने की इजाजत है आपको. Do you have to, sir? Do you have to? 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 What do you have to? Do you have to drive car, sir? No, I don't have to. I have drivers. Okay. Sir, do you have to home chores? Do you have to do home chores? Yes, because I remain at home, so I have to do home chores sometimes. Which kind of home chores you do? I have to make tea. I have to sometimes clean the stove and all the kitchen. Sometimes I have to wipe the floor. Sometimes I have to do some necessary works before washing clothes, like fill up the machine with hot water. So it is easy to wash clothes in this winter, in this chilled weather. Like today I did in the morning when I woke up. My wife requested me to please go and fill up the machine with hot water so I can wash clothes. Very nice, sir. Sure. After that, After that, I made breakfast for myself and for her. Then we had breakfast together. Then I started my class at 10. In the meanwhile, she prepared lunch and she also washed clothes. She also saw my kids. And then at 1:30, I left my home for some household works like some depositing, withdrawing, buying, sealing, right? Okay, so what do you have to, where do you have to? आप अपनी कॉन्वर्सेशन क्लास में ऐसे सवाल कीजिएगा अभी थोड़ी देर बाद. अच्छा, अब इसका एक जुड़वा भाई भी है, इसी स्ट्रक्चर का एक जुड़वा भाई भी है, तो जुड़वा को भी देख लें. We can also use have to talk about single obligation. We can also use have to talk about single obligation. We can also use an extra word got in this structure. मैंने कहा एक एक्स्ट्रा वर्ड हम लगा सकते हैं और वो एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा है? वो एक्स्ट्रा वर्ड है got. got. ठीक है, you can use an extra word got. आप एक्स्ट्रा वर्ड लगा सकते हैं got अगर लगाना चाहे. If you don't want to use, I don't mind at all, right? But if you want to use, you can use an extra word got. ठीक है, आप you can use an extra word got. अगर सर ये लगा दिया तो इसको लगाने से कोई फर्क पड़ेगा?
जुमला आपका इनफॉर्मल हो जाएगा, योर सेंटेंस विल बी इनफॉर्मल, आपका सेंटेंस इनफॉर्मल हो जाएगा अगर आपने लगाया। आपकी मर्जी, आप लगाना चाहें तो लगा ले, अगर आपको नहीं लगाना तो ना लगाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे, ना ही हम आपको टोकेंगे, ठीक है? आपकी बात समझ? अब देखिए, अगर Yes, sir. आई, अच्छा ये बात करते हैं सिंगल ऑब्लिगेशन की। सिंगल ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है? सिंगल ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है? एक जिम्मेदारी। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो हमको एक मर्तबा निभानी है। जैसे आज भाई जो है वो मेरे हॉस्पिटल गए हुए हैं और मुझे एक कुछ काम करना है, तो मैंने कहा आई हैव टू डिपॉजिट दीज बिल्स बिकॉज माई ब्रदर इज नॉट अवेलेबल। वेट कीजिएगा, बस मैं अभी मेरे स्ट्रीम पर आकर आपको होस्टिंग दे रहा हूँ, वेट कीजिएगा। तो आई हैव टू बाय अ फ्यू शर्ट्स, आई हैव टू बाय अ फ्यू शर्ट्स, मुझे कुछ शर्ट्स खरीदनी है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो मुझे आज निभानी है, वरना जनरली मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, जनरली मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आज निभानी है। अब सोचे कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो आज और कल में आपको निभानी है। I have to buy some grocery. I have to buy some grocery. अच्छा, आप गॉट लगाना चाहे आपकी मर्जी। अगर आपने गॉट लगा दिया, अगर आपने गॉट लगा दिया तो बस आप, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आपका सेंटेंस जो है वो इनफॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपने गॉट लगा दिया और नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर देख ले, फिर नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे? फिर नेगेटिव बनाने का जो तरीका है, आप haven't और hasn't का इस्तेमाल करेंगे। I haven't got to, 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 he hasn't got to। क्वेश्चन कैसे करेंगे? have, has प्लस सब्जेक्ट प्लस got to, ठीक है? has, have प्लस सब्जेक्ट प्लस got to। मैं आ रहा हूं आप लोगों को बस देने के लिए होस्टिंग। where have you got to, where have you got to, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है have to, ये स्ट्रक्चर जो have to, ये मुझे आपकी प्रेजेंटेशन में चाहिए लाजमी तौर पर, ठीक है ना? ये आप लाजमी तौर पर इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर have to। कोई रूटीन के अंदर जिम्मेदारियां भी तो है ना, तो जिम्मेदारियों के बारे में भी आप बताएंगे, ठीक है? फ्राइडे को बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन देनी है आपको मिस महक की क्लास में, मैं फीडबैक लूंगा। यस सर, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।